पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। कभी जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। Thank you. I must sit so many meetings. And then I'm really humbled and very thankful to my khala, my masi. She is one strong woman I know, and she knows how much I admire her. Wonderful, wonderful lady. Thank you so much, and I will again say this is a menace in our society, getting girls married at a very young age. I myself was married at the age of 20, 21 I had my son. And similarly, certain situations were there, but I was fortunate enough to continue with my studies. I was a B.Pharm then. My son was just 6 months when I started with my masters, and I was the only girl in my class. I could not write my first term exams because of the short attendance, but somehow I managed. I was given this gold medal by Dr. APJ Abdul Kalam. Then I was offered Inspire Fellowship for my PhD. So things kept happening, and the way you spent almost 10.5 years in some marriage, I spent almost 12 to 13 years. Then I delivered my second child, who was diagnosed on autism spectrum. And which was the time when I realized that what is the point, which is very important. We must understand this bro code which has been missing in women inherently. Just please come up and speak for other women. Be there, just support them. Not financially, emotionally, some sort of support. So if I'm ever, and right now, yeah, I would like to tell you that I never wanted to do a PhD just because I was being given this fellowship by the government of India. I did it. So now I have enrolled myself at IIM Lucknow for my MBA, which I am almost in my 4th term. So yes, this is what I was speaking to my friend yesterday, that now what? What next? What can I do for the society? So recently there was an article also about me, and I just aim to do 2 things for women and then for specially able children. If I ever am able to do any way I'm able to help, I'm always there. Any time of any hour on the clock. Thank you so much, and you guys are doing an amazing job. I was just wondering that I'm just working and making my needs meet and ends meet, and you people are. मैडम इनर के बारे में क्या कहना चाहती हो? हाँ अभी थोड़ा इनकम मैडम इनर के बारे में क्या कहना चाहते हो? इनरविल दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वीमेन वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए हम कहते हैं कि दिस इज़ ऑफ वीमेन बाय वीमेन फॉर एवरीवन। वी आर नॉट इन इट फॉर इनकम, वी आर इन इट फॉर आउटकम। तो जहाँ भी जिसे भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, इनरविल वहाँ पहुँच जाता है। और आगे इनरविल इस समय जो आज आपने प्रोग्राम देखा, ये इनरविल डिस्ट्रिक्ट 301 में इनरविल क्लब ऑफ दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है। इनको 4 साल पूरे हुए हैं। इन्होंने चेयरमैन ऑफिशियल विजिट का, तो इस साल हम इनरविल डिस्ट्रिक्ट 301 के चेयरमैन हैं डॉक्टर उर्वशी मित्तल। ये वो ओकेजन होता है जिसको इनरविल वर्ड में हम एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं, और इनरविल के जितने भी मेंबर्स होते हैं जिस क्लब में, वो क्लब कैसा काम कर रहा है, अगर उसको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। और अपना देखिए, हम यहाँ पर पैसों के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पर हैं समाज की सेवा करने के लिए। पर हर किसी के पास ज़िंदगी में एक मोटिवेशन होना चाहिए, जो वो काम करते हैं वो करते चले जाने के लिए। तो इनरविल में वो मोटिवेशन क्या होता है? रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। उस साल के जो उनकी इनरविल के डिस्ट्रिक्ट लीडर हैं, जो कि पॉलिटिकल वर्ड में मुख्यमंत्री के बराबर की रैंक होती है, तो उसको दिखाकर उन्हें अच्छा लगता है, वो उनकी तारीफ़ करती है, और उनको भी और सारे क्लब्स को आपस में कनेक्टिविटी मिलती है। एक क्लब ने क्या अच्छा काम किया, वो उस साल की लीडर दूसरे क्लब में जाके बताती है, उस क्लब के मेंबर्स की तारीफ़ करती है, अपने इनपुट्स देती है। तो ये एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मीटिंग होती है, जिसमें उस साल के डिस्ट्रिक्ट चेयर और सारे मेंबर्स साथ मिलकर बैठते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं और एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। मैं उर्वशी मित्तल, जो कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है,
इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी इनके अंदर जो एक वो देखी है कि इनका ईगो बिल्कुल नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन समझती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी क्विक है, अगर इनको किसी का मैंने कोई मैसेज दिया है तो मैसेज का विदिन 1 मिनट मुझे आंसर आ जाता है, ये किसी को भी। ये इनकी बात मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। शी इज़ वेरी एक्टिव, वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट इन ईच एवरीथिंग। आप भी और अच्छा भी देखिए, हर एक हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगली एक से नहीं होती, पर हर किसी की अपनी यूटिलिटी होती है। ऐसे ही इनरव्हील क्लब में फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ से मेंबर्स होते हैं और हर एक क्लब की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई क्लब एनवायरनमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करता है, कोई क्लब सीनियर सिटीजन को अपनी प्रायोरिटी बना लेता है, कोई क्लब विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। पर आज जब यहाँ पर आए तो हमें बहुत खुशी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि एक तो इस क्लब के मेंबर्स इतने ओपन माइंडेड हैं, हमें इनको देख के बस वही लाइन याद आती है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या कम हो तुम हो। ये सब अपने सब मेंबर्स को, समाज को साथ लेके चलते हैं। और जो हमारे मोदी जी का विजन है स्वच्छ भारत, उसको ये लोग साथ लेके चल रहे हैं। इन्होंने हुमायूं टोम पर जाके वो बहुत बड़ा काम किया। और आपने देखिए, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ पर से नो टू प्लास्टिक का जो इन्होंने बैनर लगाया है, वो इनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट में, जो हम इस साल लेके चल रहे हैं कि हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाना है। तो जब हम किसी भी चीज़ का बैनर लगाते हैं तो वो हमारे अपने को रिमाइंड कराता है, हमारे सारे मेंबर्स को बताता है कि हम किस चीज़ को लेकर साथ चल रहे हैं। तो स्वच्छता और प्लास्टिक को हटाना, टू सेव एनवायरनमेंट, ये इनका इनिशिएटिव है। और जो इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है बहुत साल से, 4 साल का ये क्लब हो गया, व्हील चेयर डोनेशन, वो इन्होंने बहुत अच्छा किया, हमें बुलाया भी। तो यहाँ से हम ये बहुत ही सक्सेसफुल चेयरमैन ऑफिशियल विजिट रहा। और हमारी इनरव्हील की इस साल की क्लब प्रेसिडेंट सीमिन को और चार्टर प्रेसिडेंट गुलनार मिर्ज़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अपने क्लब को इसी तरह से आगे ले जाती रहें। और इस काम में उन्हें क्लब के मेंबर्स ने उन्हें बहुत सहयोग किया, जो देख के हमें बहुत अच्छा लगा।